teacher, and today we are going to start our new chapter in the science, that is nutrition in plants. So kids, in previous class we already learned about what is a nutrition. Nutrition क्या है? Nutrition is a process. Okay? Nutrition is a process by which organism take food and use it for their energy. उसका जो हम क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दे नीड न्यूट्रिशन. व्हाई? फॉर आफ्टर न्यूट्रिशन दे गेट एनर्जी फॉर यूटिलाइजिंग वेरियस पर्पस. ओके, सो इन दिस चैप्टर हम प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में डील करेंगे. बेसिकली प्लांट्स में टू टाइप का न्यूट्रिशन होता है. ओके, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स मीन्स ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, मीन्स जो एलिमेंट ट्रॉप्स प्रिपेयरिंग. All living things, those who have prepared their own food, they belongs to category of autotrophs. So generally all green plants are known as autotrophs. And hetero means depends on other. Heterotrophs means depends on other for their food. तो जो एनिमल्स या जो लिविंग बींग्स दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो किस में आ जाते हैं? हेटरोट्रॉप्स में. Heterotrophs are further divided into the four categories: parasitic, insectivorous, saprophytes, symbiotic. As name से जैसे clear हो रहा है, take out your book. We learn all these things in the detail in your chapter. Okay? So this and I am taking science, and that first chapter is our nutrition in plants. Okay. So before we start, remember kids, what is the nutrition? A nutrition is a process by which organism take in food and utilize it on its order to survive. Means हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं एज अ फॉर्म ऑफ मील, हम जो खाने के रूप में न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को देते हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है? यूटिलाइज हो जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रॉपर फूड इन प्रॉपर अमाउंट इन द राइट टाइम. ओके, सो न्यूट्रिशन से हमको मोस्टली क्या प्रोवाइड होता है? फूड. न्यूट्रिशन किस में मिलता है हमको? फूड कंपोनेंट्स एंड ऑल nutrient material which is very important for our body, like है ना. So in this chapter we learn about the nutrition in the plants. Okay, so nutrition is a mode of taking food by organism and utilize the food for their growth and development. In this process the food we eat is broken down into simpler component from which we get energy to perform basic life processes, that is to survive, to grow and reproduce. Okay, so all organisms require food energy for their survival. Therefore nutrition is also required by all the organisms including plants. अब when we talk about the plant, basically plants में जो न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं. ओके, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऑटो मीन्स होता है सेल्फ. ओके, एंड ट्रॉफिक मीन्स टू ईट, मतलब जो खाना अपना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड they prepare by their own self. It means all the green plant belongs to category of autotrophic. Clear? And heterotroph means the living organism depends on to the other organism for their feeding habit. They can't make their own food, so that's why it depends on the other. So they belongs to category of heterotrophic. Okay. See, as you can see in this board, nutrition in plants, two types: autotrophic mode, heterotrophic mode. For the heterotrophic mode, it is divided into the four categories: parasitic, insectivorous, saprophytes and symbiotic. So in this chapter we learn about all these things, but first we'll discuss about the autotrophic mode of nutrition. So what is the autotrophic mode of nutrition? Auto means हमको all green plants prepare their own food. Remember ना? How? Due to the process of photosynthesis. So basically plant need some important things to perform photosynthesis, like carbon dioxide, like sunlight, है ना, soil, water. Okay, so and the most important thing that is found in the leaf, the green color pigment that is known as chlorophyll. So basic four things: carbon dioxide, air, water and chlorophyll to need to perform to the photosynthesis.
ना हाउ इट परफॉर्म, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है परफॉर्म होती है. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड हमको किससे मिला? एयर के थ्रू. वाटर हमको सॉइल से एब्जॉर्ब हो गया, राइट. नाउ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के फॉर्म में फूड, प्लांट ने अपना क्या बनाया? फूड बनाया. एंड द रिलीज द ऑक्सीजन गैस. दिस ऑक्सीजन इनटेक बाय द ऑल ह्यूमन बीइंग्स. ओके, नाउ वी intake oxygen, we take oxygen and give out the carbon dioxide. So this circle is all the time in the running process. Okay, so the green plant contain a pigment called the chlorophyll that gives green color to the plant, and chlorophyll traps sunlight and stomata take in carbon dioxide from the atmosphere. The root of plant absorb water and mineral from the soil. So during the process of photosynthesis, the chlorophyll converts sunlight into the chemical energy. अब क्या बता रहा है कि during the process of photosynthesis, this chlorophyll trap the sunlight and convert this sunlight into the chemical energy in the presence of carbon dioxide and water. So glucose and oxygen are the product by the photosynthesis process, and glucose is stored in the form of starch. अब ये ग्लूकोज जो बन गया आफ्टर द फोटोसिंथेसिस, वो किस फॉर्म में प्लांट बॉडी में स्टोर रहता है? या एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च. द फूड परफॉर्म्ड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज एज पर नीड. नाउ अब ये जो फूड, लीफ में जो फूड बना, ये फूड पूरी प्लांट बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है. Now chlorophyll is primarily found in the leaves of plant. However, you can also find chlorophyll in the stem and fruits of. कुछ आइडेंटिकल ऐसे केसेस रहते हैं जिनमें लीफ के अलावा भी क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? स्टेम्स में और फ्रूट में. The complete body of small plants like algae have chlorophyll, and their entire body take part in the process of photosynthesis. Okay. Now, as we know that plants need something to perform photosynthesis: CO2, H2O, sunlight, and chlorophyll. Plant take. So first, अब हम क्लोरोफिल के बारे में. So there is a small introduction of chlorophyll is given in your book ना. Let's study about this. So क्लोरोफिल का क्या फंक्शन था हमने पढ़ा था ना? It's trap the sunlight and convert this sun energy into the chemical energy. Okay. So there is a small internal structure of chloroplast is given here. So in plant cell there is a chloroplast cell found. Okay, so all green plants contain chloroplast, and it is a double layered cell organelle which contain photosynthetic pigment that is known as chlorophyll. Inside the chloroplast cell, see, this is a chloroplast cell. Inside the chloroplast cell we see that the small disc-like structure called the granum. Okay, these are all granum, and all granum are connected to the by a thread-like structure that is known as lamellae. जितने भी ग्रेनम है वो आपस में एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहते हैं, उसको हम कहते हैं lamellae. Okay, and each unit of granum is called the thylakoid. जो आपको ये सेक्लेक स्ट्रक्चर का बंच दिख रहा है, इट्स नोन एज ग्रेनम, और ग्रेनम की जो सिंगल यूनिट है वो क्या कहलाती है? थाइलेकॉइड. ओके, सो इनसाइड द थाइलेकॉइड देयर इज अ ग्रीन केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड द क्लोरोफिल आर फाउंड. सो दैट इज द लोकेशन वेयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आर गोइंग. इसी प्रॉपर प्लेस में जो है, इसी प्रॉपर प्लेस में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो होती है. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, एक टर्म आया था स्टोमेटा. सो व्हाट इज अ स्टोमेटा? रिमेंबर, स्टोमेटा इज अ ब्रीदिंग पोर ऑफ द प्लांट बॉडी विच इज फाउंड इनसाइड द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स. रिमेंबर ना, हमने लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि स्टोमेटा आर फाउंड in the lower surface of the leaf, not in upper surface, and it is a small pore called the stoma. अब एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं स्टोमेटा क्या होता है. दिस इज अ स्टोमेटा, स्मॉल पोर. इसकी दो स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय द थिक bean shaped cells, and these cells are known as guard cells. Okay, and these guard cells are the control to opening and closing of the stomatal cell during the
photosynthesis and breathing process. Clear? Now turn your page. Now after this, water and mineral, as we know that root are helps to absorb all water and mineral from the soil. Remember now there is a two important cells found in the roots, that is xylem and phloem. Xylems of the plant absorb water from the soil and transport it to the other parts through the network of tubes called. अब xylem का क्या, xylem cells क्या करती है, water body को absorb करती है और ये plant को प्रोवाइड करवाती है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद वाटर दिस रिएक्शन टू प्रोड्यूस द फूड इन दैट ग्लूकोज along with the oxygen gas. So these food is transported by the special conducting tube cells known as phloem. अब यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन अराइज होता है कि जाइलम सेल्स का क्या फंक्शन है एंड फ्लोएम सेल्स का. तो जाइलम सेल्स हेल्प्स टू प्रोवाइड वाटर. वो वाटर बॉडी को पूरे बॉडी में कौन पहुंचाता है, जाइलम सेल के थ्रू कंडक्ट होता है और फ्लोएम के थ्रू जो है वो फूड मटेरियल प्रोवाइड होता है. ओके, now coming to the next topic, that is heterotrophic nutrition. Now what is the meaning of heterotrophic mode? As I told you previously that heterotrophic mode of nutrition means when plant, those who are not able to make their own food like autotrophs, they depends on the some other plant for their nutrition. That mode of nutrition is called the हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इट मीन्स एक प्लांट बॉडी जो कि खाना बनाने के लिए कैपेबल नहीं है, वो दूसरी प्लांट बॉडी पर डिपेंड रहती है खाना बनाने के लिए. अंडरस्टैंड? सो दीज मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो एज इन योर बुक दैट इज गिवन हियर, heterotrophics are further divided in 4 categories: parasitic, insectivorous and saprophyte, okay, and symbiotic. So let's first discuss about the parasitic mode of nutrition. As I told you that heterotrophic में क्या होता है, एक प्लांट बॉडी जो खाना बनाने में एबल नहीं है वो दूसरे पर डिपेंड रहती है. पैरासिटिक चारों उसी कैटेगरी में आते हैं, बट इनमें जो इनका जो आपसी म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो हर जगह थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है. लेट्स लर्न. Some plants derive their nutritional requirement from the another living organism. Plants which exhibit this type of nutrition called the parasitic plant. Parasitic plants lives or in the underbody of the living plant called the host. Ab suppose this A plant depend on the B plant for their nutrition. So plant B is called the host and plant A is known as parasitic plant. Okay, क्योंकि ये डिपेंड है बी पे अपने न्यूट्रिशन के लिए. सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन फाउंड इन द कस्क्यूटा, अमरबेल, डोडर, है ना, ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री. सो मेनी प्लांट्स आर ग्रुप ऑफ द पैरासिटिक प्लांट. नाउ हियर इज अ गिवन सम. रेफ्लेशिया इज अ पैरासिटिक प्लांट. देखो रेफ्लेशिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है. इट इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द होल वर्ल्ड, बट इट इज अ पैरासिटिक प्लांट. और इसे इतनी बहुत बैड स्मेल, इसकी जो स्मेल है इट्स वेरी बैड स्मेल कमिंग आउट फ्रॉम इट. मतलब जो रॉटन फ्लैश रहता है, यदि हम रॉटन फ्लैश को इमेजिन करें तो सिमिलरली उसी की जैसी स्मेल इस रेफ्लेशिया के फ्लावर से आती है. ओके, सो अब ये प्लांट कैसे अपना खाना, जनरली रूट तो होते हैं प्लांट में, पर इनमें भी एक मॉडिफाइड रूट होता है, उसको कहते हैं हम हॉस्टोरिया. क्या कहते हैं? हॉस्टोरिया. तो पूछ सकता है कि हॉस्टोरिया किस में पाया जाता है. तो मॉडिफाइड रूट्स आर फाउंड इन द पैरासिटिक प्लांट बॉडी दैट नोन एज हॉस्टोरिया. हॉस्टोरिया सक्स द होस्ट प्लांट एंड एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट मटेरियल. अब इन पैरासिटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, in parasitic relationship only parasitic plant get benefited and the host plant get not benefited. It will be damaged, it will be die, it will be malnutrient. Okay, so some parasitic plants are cuscuta, mesclun. Okay, now coming to the next is that is insectivorous. अब देखो नाम से ही क्लियर है, इंसेक्ट. इंसेक्ट मीन्स होता है जो कीड़े रहते हैं. इंसेक्टिवोरस मीन्स जो वो प्लांट जो इंसेक्ट ईटर है उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट. ओके, सम प्लांट लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ब्लैडर रॉट, सनड्यू आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट. हाउ? अब देखो सनड्यू की हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है, इट इज अ वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग प्लांट.
एंड इट्स अपर सरफेस ऑफ द लीफ कवर विद द टेंटिकल। देखो आप दिख रहे हैं यहाँ पे ये मॉडिफाइड लीफ है और इस लीफ की अपर सरफेस वो टेंटिकल से क्या है कवर हो गई है। एंड दिस टेंटिकल प्रोड्यूस स्टिकी सब्सटेंस, एक चिपचिपा पदार्थ ये प्रोड्यूस करते हैं। एंड व्हेनेवर इंसेक्ट सिट ऑन दैट, जब भी कोई इंसेक्ट इस पे आके बैठता है वो स्टिकी सब्सटेंस से क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। और जैसे ही कोई एनिमल इंसेक्ट इस पे आके बैठा, सडनली इट फोल्डेड or leaf and insect get caught. Okay. Now next is Venus flytrap की बात करते हैं। सी इट इज, इसकी जो लीफ है वो मॉडिफाइड हो जाती है प्लेट-लाइट स्ट्रक्चर में। एज यू कैन सी हियर द लीफ गेट मॉडिफाइड इनटू प्लेट-लाइट स्ट्रक्चर। उनकी लीफ के मार्जिन से थॉर्नी स्ट्रक्चर अराइज हो जाते हैं इनके मार्जिन पे। एंड व्हेनेवर एनी इंसेक्ट सिट्स ऑन दिस प्लेट, द बोथ लीफ जो मॉडिफाइड लीफ है वो क्लोज हो जाती है और वो इंसेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, सम डाइजेस्टिव फूड के साथ डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर? सो और नेक्स्ट इज पिचर प्लांट। पिचर प्लांट देखो बॉडी, इसका सैकलाइज स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको। अब क्या होता है, इनके माउथ है, अपर पार्ट जो माउथ है इनका, यहाँ पे स्टिकी सब्सटेंस, व्हेनेवर एनी इंसेक्ट आर सिट हियर तो उसके टेंटिकल से फंस जाता है। एंड जो लीड है, अपर साइड जो लीड दिख रही है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। एंड देन इंसेक्ट डाइजेस्टिव जूसेस अराइजेस फ्रॉम हियर एंड इंसेक्ट गेट डाइजेस्टेड। ओके, सो दीज आर इंसेक्टिवायरस प्लांट। इंसेक्टिवायरस की डेफिनेशन में बताऊं क्या होगी, सम प्लांट्स, ये जो इंसेक्टिवायरस प्लांट्स है वो मोस्टली कैसे एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ के सॉइल्स में न्यूट्रिशन एलिमेंट्स की कमी होती है। ओके, नेक्स्ट इज saprotrophs. Saprotrophs means similarly all heterotrophs, like they depends on other animal na, but living है। देखो these plant is living and insect is also living, okay, in the insectivorous. Similarly parasitic plant में parasitic plants are living and host plant are also living. But when we talk about the saprophyte or saprophytic plants, इनके केस में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑल लिविंग प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो प्लांट बॉडी, जो एनिमल्स जो है वो खराब हो जाता है ना, जो डिकेइंग हो जाता है, सॉइल में डेड हो जाता है, उनको डेड प्लांट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं और कैप्चर करते हैं। सो द प्लांट दैट लीव्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, दे आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉप्स। ओके, आपने देखा होगा ब्रेड मोल्स वगैरह। हमें ब्रेड में कभी कभी जो ब्रेड हम रख देते हैं कुछ दिनों में क्या हो जाता है, रॉटन हो जाता है, तो उसमें ग्रीनिश स्ट्रक्चर अराइज हो जाते हैं। तो दीज आर फंजाई। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सैप्रोट्रॉप दैट इज फंगस, ब्रेड मोल्ड जिसको हम बोलते हैं। मशरूम आपने देखा होगा, मशरूम जनरली रेनी सीजन में ये अराइज होता है। ओके, सो मशरूम आर ऑल्सो अ सैप्रोफाइट, सम सैप्रोट्रॉफ्स, सैप्रोफिटिक प्लांट्स, एंड सम मशरूम आर एडिबल एंड सम आर वेरी पॉइजनस ना। ओके, नेक्स्ट इज symbiotic relationship. Now what is a symbiotic relationship? देखो सैप्रोफाइटिक्स में उन्होंने डेड प्लांट से एनालाइज किया था। इसमें क्या होता है, एक प्लांट, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी तरह डेड हो जाता है ना, दूसरा कोई बेनिफिशियल नहीं है। पैरासिटिक में भी होस्ट प्लांट जो है बेनिफिशियल नहीं रहता है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल तो पैरासिटिक प्लांट ले लेता है। ओके, बट सिम्बायोटिक इन सिम्बायोसिस मीन्स म्यूचुअल रिलेशनशिप, मीन्स जिसमें प्लांट ए एंड प्लांट बी बोथ आर गेट बेनिफिटेड, मीन्स दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। यदि कोई न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे प्लांट पे डिपेंड है तो ऑटोमेटिकली होस्ट प्लांट भी उसको कुछ ले रहा है या दे रहा है। तो एक सिम्बायोसिस, एक म्यूचुअल, एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप जो है वो फाउंड हो रहा है। सो दीज टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। The best example of symbiotic, that is lichen. Now, organism develop mutual relationship with other organism to obtain nutrients. In this way, both organism help each other to be mutually benefited. The organism involved in this type of relationship are known as symbiotones, and this relationship is called symbiosis. Lichens are the perfect example of symbiotic relationship because in the lichen, अब लाइकन में क्या होती है, एक एल्गल सेल होती है और एक फंगल सेल होती है।
Okay. Further I will explain you that what is a algae and what is a fungi. Okay. So algal cells that an autotroph lives in association with the fungal cell, that is a saprotrophs. Composite of algae and fungi is lichen. Okay, the blue horn, the acacia tree, and the certain species of ant, rhizobia, group of soil bacteria that colonize at a root of legume from root nodules are the some other example of symbiosis. Okay. Now, next topic in this chapter, that how are nutrients replenished in the soil. अब देखो क्या होता है, when roots absorb all nutrients, all water from the soil and give to the plant body ना, after some time क्या होता है, soil मेल न्यूट्रिएंट हो जाती है. इट मीन्स सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है. तो हम फार्मर क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर ऐड करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए. अब ये व्हाट इज अ फर्टिलाइजर? सम बैक्टीरियल सेल्स प्रोड्यूस नाइट्रोजन लाइक राइजोबियम. दे lives in the roots of leguminous plants such as grams, peas and beans, and it converts atmospheric nitrogen into nitrogenous from absorbable plants. Finally, the soil becomes rich in nitrogen and more fertile. So in return, the plant provides food, shelter to the bacteria. And this is an excellent example of symbiotic relationship. It is also a symbiotic. How? जब प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है तो कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं, बैक्टीरियल सेल्स रहते हैं, वो फिर से नाइट्रोजन किसमें प्रोवाइड कर देते हैं, और ये बैक्टीरियल किसमें पाए जाते हैं? रूट्स, लेग्यूमिनेटेड प्लांट्स के रूट में पाए जाते हैं, जो कि सॉइल को क्या प्रोवाइड करते हैं? नाइट्रोजन गैस. सो दोनों बेनिफिशियल हो रहा है, प्लांट भी और ये बैक्टीरिया भी. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस. ओके, सो दिस वॉज योर चैप्टर किड्स. होप यू अंडरस्टूड. इफ एनी डाउट